Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning. कनेक्शन इशू हो रहा था यार कुछ. So in the last class we discussed how to formulate linear programming problem. Yes, sir. And I gave you one problem also. Product allocation problem है ना? No, not this one. Second, this problem we have already discussed in the last class. A company has 3 operational departments. So you saw that how we can construct or formulate a problem by using given data. So one more problem I gave you as assignment. So have you tried that problem? That was also product mix problem of 2 bottles. Let me open that problem. Mhm. Yes. So this is the problem number 202. Is it visible? Yes, sir. Product mix problem. Yes, sir. So this was another problem which I gave you yesterday, means in on Saturday. Consider the following programming problem faced by a production planner in a soft drink plant. He has 2 bottling machines A and B. 2 bottles है. A is designed for 8-ounce bottles and B is designed for 16-ounce bottles. However, each can be used on both types with some loss of efficiency. Means bottle A can be used for product B, bottle B can be used for product A. But basically they have made for 8-ounce and 16-ounce. So the following data is available. This data is available. Machine A can generate 100-ounce bottles per minute. Means in a minute it can generate 100 8-ounce bottles and 40 16-ounce bottle. Means machine A can also generate 16-ounce bottle but only 40. Similarly, machine B can generate 68 ounce bottles per minute and 75 16-ounce bottles per minute. Each machine can run 8 hours per day. Now these are the restrictions. Machine have 8 hours per day. A cannot run more than 8 hours, B cannot run more than 8 hours. 5 days per week and also 5 days per week. Profit on a 8-ounce bottle is 25 paise and 16-ounce bottle is 35 paise. Weekly production of the drink cannot exceed 3
lakh ounces, and the market can absorb 25,000 8-ounce bottles and 7,000 16-ounce bottles per week. So these all are restrictions. The planner wishes to maximize his profit, subject of course to all the productions and marketing restrictions. So the planner and the businessman, he or she want to wish to maximize the profit. So formalize this as a linear programming problem. So this is a problem, a real life problem, product mix problem, and you have to make it a LPP. So problem is clear. Yes, sir. So here you have to make a linear programming problem. So you will try it or should I solve it here? बताइए. वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में आपके लिए छोड़ी थी प्रॉब्लम ये एक. If you can formulate, then it's okay. Here you have to consider your key decision variables. And as I told you, you have three basic components: key decision variables, your objective function, and your restriction. So key decision variables यहाँ पर क्या होगा? What is the key decision variables here? Yeah. What is the deciding variables? Number of what? The number of bottles. Number of bottles. The key decision, they are the key decision variables, of course, है ना? क्योंकि ultimately the problem is what? The problem is product of bottles of type 8 type 8 ounce and 16 ounce. तो key decision variables क्या हो गए आपके? Number of bottles. So you have to consider, let us suppose x1 be the number of 8 ounce bottles and x2 be the number of 16 ounce bottles to be produced per week, है ना? तो हमें ये x1 x2 कैलकुलेट करना है यहाँ पर बेसिकली कि how much x1 and how much x2 is required. So first thing you have to consider, let us suppose x1 and x2 be the number of bottles to be produced per week to maximize the profit, and you have to find how much x1 how much x2, है ना? अब x1 x2 में there are some restrictions are given, है ना? One restriction is given. First restriction अगर आप देखें तो first restriction is given availability of time. Each machine can be run 8 hours per day, 5 days per week. तो इसको अगर आप hours को और यहाँ पर per minute दिया हुआ है डेटा, तो you have to change all the data in a same unit. तो मैंने ऐसा अगर minutes में कर लिया तो you can write 8 into 60 into 5, है ना? 5, yes, sir. So it means it will be coming 2400. So machine A has restriction 2400 minutes per week. Machine B has 2400 minutes per week. तो मशीन कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाएंगे? अब देखो मशीन ए पे क्या है? मशीन ए कैन प्रोड्यूस 100 बॉटल्स पर मिनट, यानी कि 1 बॉटल अगर आपके पास इफ यू हैव टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स x, है ना? तो आपके पास 1 बॉटल में कितना टाइम लगेगा? x by 100, Yes, है ना? sir. क्योंकि आई हैव चेंज द डेटा इन मिनट नाउ. तो 100 बॉटल्स आ रही है 1 मिनट में, इसका मतलब 1 बॉटल टेकिंग 1 by 100 मिनट. तो x बॉटल विल टेक x by 100 मिनट, है ना? मशीन ए में. सिमिलरली अभी मशीन ए की बात करें, सेकंड बॉटल्स आपने मान लीजिए y कंसीडर कर लिया, तो y बॉटल्स में कितना टाइम लग रहा है? 1 by 40, है ना? 1 बॉटल में. तो y बॉटल्स विल टेक y by 40. तो मशीन ए का रेस्ट्रिक्शन क्या हो गया? x by 100. लेट मी राइट इट इनटू व्हाइट बोर्ड. So you can take machine A. I am assuming, है ना? This is your problem number 202. In my book 14 edition, it is page number 41. If you want to buy a book, so there may be some new editions available. It is old edition. I bought it 4 or 5 years back. So maybe there is a new edition. तो आप उसमें देख सकते हैं शायद पेज नंबर चेंज हो. प्रॉब्लम्स लेकिन सारी सेम होंगी. So I have considered let x and y be the number of bottles of 8 ounce and ounces में दिया हुआ आपको ये यूनिट and
16 ounce, आप लीटर या ml में ले सकते हैं इसे, है ना, to be produced to maximize the profit. Okay, so according to data restriction, so as I told you, machine is taking 1 per 100, so I can write x by 100 plus y by 40 less than equal to 2400. मैं minutes में change कर लिया, 8 hours and 5 weeks. It is the restriction for machine A. Similarly, machine B का data given था आपको कि machine B can produce 60 per minute 8 ounce bottle, 75 per minute 16 ounce bottles. So you can write x upon 60 plus y upon 75. It is also less than equal to 2400. है ना? It is given कि each machine can run 8 hours per week per day and 5 days per week. तो मैंने इसे चेंज कर लिया यूनिट में ना, 8 hours को 60 में and 5 days से इंटू करेंगे आप, तो it will be coming how much? 2400. ये हमने कर दिया क्योंकि मिनट्स में आपका वो गिवन था। तो ये तो दिस इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन मशीन, ये आपकी मशीन कॉन्स्टेंट्स हो गए, है ना, फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स आपके मशीन कॉन्स्टेंट्स आई कैन से। तो यू हैव गॉट योर की वेरिएबल्स, सेकंड मशीन कॉन्स्टेंट्स। अभी और कॉन्स्टेंट्स गिवन थे, देखो इट इज आल्सो गिवन प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट्स। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट्स क्या गिवन है हियर, यू कैन सी वीकली प्रोडक्शन ऑफ द ड्रिंक कैन नॉट एक्सीड 3 लाख आउंसेस, यानी कि जो वीकली प्रोडक्शन है ये 3 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। एंड टू मेक एंड द मार्केट कैन एब्जॉर्ब 25,000 8 ounces bottles and 7,006 ounces bottles पर वीक। तो जो मार्केट है उसमें 8 ounce की 25,000 bottles आ सकती हैं और 16 ounce की 7,000 मैक्सिमम। तो अगर आपने माना कि x एंड y आर द नंबर ऑफ बॉटल्स, तो 8 इंटू एक्स, है ना, तो ये 8 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 8 ounce की बॉटल में अगर आपके पास x बॉटल्स है तो 8 इंटू एक्स ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, है ना, प्लस 16 ounce बॉटल्स है तो 16 इंटू वाई इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 16 ounces bottles, है ना। इट कैन नॉट एक्सीड 3 लाख ounces, ये गिवन है। तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 3000, ये आपका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है। देखो प्रॉब्लम फिर से, सर एक्सक्यूज मी यस सर, ये जो सर आपने मल्टीप्लाई कर रखा है सर, सर इसमें शायद 24 से भी मल्टीप्लाई होगा सर। इसमें 24 से किसमें होगा? सर ये जो सर 8 इंटू 60 इंटू 5 किया है सर आपने, तो क्यों इसमें 24 से भी मल्टीप्लाई 24 से ही मल्टीप्लाई होगा इसमें? क्यों 8 आवर्स है ना, यस सर 8 आवर्स पर डे है ना, तो पर डे में 8 आवर्स है तो आपके 8 इंटू 60 2400 मिनट्स हो गए पर डे, और उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 24 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, 24 टाइम आवर्स मशीन कोई चल रही है। ओके ओके यस सर यस है सर ना? यस सर यस सर यस तो प्रॉब्लम ये क्या प्रॉब्लम, एक मिनट रुकिए। तो here you are getting, अभी क्या व्हाइट बोर्ड दिख रहा है भाई? सर फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं दिख नो रहा, सर अभी रुक नहीं आ रहा सर। हाँ मैं प्रॉब्लम लगा रहा हूँ, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, इसे हटा के दोबारा से खोलते हैं, स्टॉप शेयर स्क्रीन मारो पीछे प्रॉब्लम। हाँ अब ठीक है। तो हेयर नो प्रॉब्लम इज Yes, sir. विजिबल, यस, है ना। सो आई हैव Yes, sir. टेकन, यस, तो ये 8 आवर्स पर डे 5 days, so it was your time machine restriction. Now it is given
वीकली ये देखो जो प्रॉफिट की बात है ये तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, प्रॉफिट ऑन 8 आउंस बॉटल, इसको आई विल दिस वेरिएबल आई विल कंसीडर इन मेकिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना। पहले हम कॉन्स्टेंट्स ले रहे हैं, तो नाउ आई विल टेक अनदर कॉन्स्टेंट दैट इज द प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट, कि हम कितना प्रोडक्शन मार्केट में ला सकते हैं, दैट इज द प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट। तो वीकली प्रोडक्शन ऑफ द ड्रिंक कैन नॉट एक्सीड 3 लाख आउंसेस, है ना। इसका लगा हुआ कि जो मार्केट का रेस्ट्रिक्शन है, इट इज गिवन टू यू कि इट कैन नॉट एक्सीड 3000 आउंसेस, यानी कि टोटल जो आप लिक्विड निकालेंगे इन लीटर इन आउंसेस, इट कैन नॉट एक्सीड 3000। अब उसमें आपका 8 आउंस का हो या 16 आउंस का हो, बट 3 लाख आउंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मार्केट में रेस्ट्रिक्शन गिवन है, एंड मार्केट कैन एब्जॉर्ब 25,000 8 आउंस बॉटल्स एंड 7,000 6 आउंस बॉटल्स पर वीक। So if you have considered कि let us suppose x and y are the number of bottles, तो 8 ounce bottles है ना 25,000 मैक्सिमम है, तो यानी क्या हुआ, x will be less than equal to 25,000 and y will be less than equal to 7,000। एक रेस्ट्रिक्शन तो ये होगा, और एक रेस्ट्रिक्शन क्या है, by using this 3 lakh ounces कि 8 into x plus 16 into y, है ना, इसका सम it cannot exceed 3 lakh। Is it clear? है ना, पर वीक। बताइए, read this line again। So this weekly production, it has basically two restrictions. One is weekly production total ounces restriction, second is per bottle restriction also, है ना, कि 25,000 per bottle x। So it means what? So one restriction is this कि total cannot exceed this, and also it is given कि x का मतलब है number of 8 ounces bottles, x should be less than equal to 25,000 and y should be less than equal to 7,000, है ना। और इनका टोटल नंबर ऑफ सम शुड बी दिस। तो दिस इज योर प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट, प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट्स। ओके, नाउ so you got your variables production, now we have the last objective function। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमें क्योंकि प्रॉफिट प्रॉब्लम है, तो प्रॉफिट वी हैव टू मैक्सिमाइज, तो इट विल बिकम मैक्सिमाइज ऑफ z इज इक्वल टू, अब प्रॉफिट आपको गिवन था कि मैं पढ़ दे रहा हूँ प्रॉब्लम को, प्रॉफिट ऑन 8 ounce bottles is 25 पैसे एंड ऑन 16 ounce bottle is 35 पैसे। तो इसको मैं पैसे में अगर रुपीस में लिख दूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, 0.25 x प्लस 0.35 y। ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा आपका भाई, ये टोटल प्रॉफिट होगा आपका। ऐसे एक्स वाई नहीं निकाल देना हमें, कुछ भी ले लेंगे, एक्स वाई पे ये रेस्ट्रिक्शन भी साथ में रहेंगी कि मशीन कांस्टेंट विल बी आल्सो देयर, प्रोडक्शन कांस्टेंट विल आल्सो देयर। तो ये आपकी एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बन गई यूजिंग दिस गिवन डेटा। समझ में आया भाई? नहीं? Yes, sir. बताइए। Yes, sir. हाँ, तो in this way you can construct the problem, है ना। As I told you, I am explaining these formulations so you can understand कि how these problem is coming। Normally हम syllabus में तो problems ही discuss करेंगे कि how to solve, लेकिन you should know कि how to construct या how to formulate the problem, ये भी आपको आना चाहिए, इसलिए I am explaining all these things। कल आप रियल लाइफ में जाते हैं, कहीं डेटा एनालिस्ट बनते हैं या कुछ बनते हैं, तो वहां पर आपके सामने प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कंपनी कैन गिव यू प्रॉब्लम कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम है, इसे आप जो है बताइए कैसे सॉल्व करें। तो देयर यू कैन यूज योर मैथमेटिकल टेक्निक्स। चलो, सो नेक्स्ट वी स्टार्ट विद नाउ द मेथड्स, है ना। इसके आगे और 4-5 प्रॉब्लम्स है, यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, अगर आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। जो आपके पास नोट्स शेयर किए हैं, इसकी सॉफ्ट कॉपी, उसमें मैंने प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं कुछ, जो आप होम असाइनमेंट प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, प्रॉब्लम नंबर 216 है, पेज नंबर 52 पे। इट इज मैन पावर प्रॉब्लम, मैन पावर प्रॉब्लम। यू हैव सम लेबर ऑफ डिफरेंट टाइप, है ना।
तो उसमें हाउ टू एडजस्ट मैन पावर इकोनॉमिकली, एंड सिमिलरली वन मोर प्रॉब्लम है 218 पर, पेज 54 पर है ये। इट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है कि यू हैव अ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी वेयर यू हैव सम नंबर ऑफ ट्रक्स और buses, and you want to send product to different cities, है ना? तो what the route should be there to optimize? जैसे यहाँ से अगर you want to transport here from suppose UP to पंजाब, और इसमें बीच में you have some cities from UP border और क्या नाम है दिल्ली border, तो how to take कि हमारा कम पेट्रोल खर्च हो और एक ही आदमी से ज़्यादा माल सप्लाई हो जाए, है ना? कि उसी रूट में हम कैसा ऑप्टिमाइजेशन रूट ले, ऑप्टिमाइज रूट ले कि वो सारे रास्ते के रूट कवर करता चला जाए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम होती है ना। तो ये दो तीन प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। इनके नाम दे रखे हैं ट्रांसपोर्टेशन, मैन पावर एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मेथड्स, है ना? मेथड्स बुक वगैरह सेंड कर दिए सर, बुक की पीडीएफ वगैरह सेंड कर दी यार। बुक ये एक्चुअली बहुत मोटी बुक है कांति स्वरूप की, क्योंकि इसके अंदर ये पूरा ओआर है। हम पूरी बुक इस्तेमाल नहीं कर रहे, और अनफॉर्चुनेटली बुक की सॉफ्ट कॉपी मुझे अभी तक मिली नहीं है इसकी। अगर आपके पास, क्योंकि इंडियन एडिशन की बुक है, सॉफ्ट कॉपी नहीं है, फॉरेन ऑथर की तो मिल जाती है। तो यू हैव टू ट्राई, अगर सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है तो इट्स ओके। अदरवाइज मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं लास्ट टाइम में जो हमारा सिलेबस है उसकी जीरोक्स कराई थी, वो जीरोक्स मेरे पास है। अगर आप कोई आ सकते हैं तो वो ले जाइए, उसकी जीरोक्स करा लीजिएगा। लेकिन वो भी अच्छे खासे पेज है, आप उसकी जीरोक्स करा लीजिएगा चाहे तो, ठीक है? या मैं कोशिश ठीक है सर, करूंगा, ठीक है। हाँ, अगर स्कैन हो जाता है ये तो मैं डाल दूंगा आपके इसमें, स्कैन करके पीडीएफ करके। ओके सर। वैसे मैं यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी शेयर कर रहा हूँ, और जो प्रॉब्लम करा रहा हूँ उसका मैंने व्हाट्सएप पे फोटो शेयर कर दिया था आपको, ठीक? तो नाउ वी हैव सेकंड टॉपिक, मेथड्स फॉर सॉल्विंग LPP, है ना, in short linear programming problem. So first method is graphical method. ग्राफिकल मेथड है ना। इसमें जो फर्स्ट मेथड है आपका वो ग्राफिकल मेथड है। यूजिंग ग्राफिकल मेथड वी कैन सॉल्व LPP, लेकिन इसमें वन रेस्ट्रिक्शन विल बी देयर। क्या रेस्ट्रिक्शन रहेगा? कि यू कैन यूज दिस मेथड फॉर अप टू 2 डिसीजन वेरिएबल्स ओनली, है ना। LPP involving 2 decision variables. 2 decision variables can easily be solved by the graphical method. And you can understand कि जो हम ग्राफ बनाते हैं नॉर्मली एक्स वाई एक्सिस में, तो 2 वेरिएबल का इजीली बना सकते हैं, आपको पता है क्यों भाई? 2 से आगे 3 का बनाने में और कॉम्प्लिकेटेड, और 4 का तो बना ही सकते, यू कैन नॉट प्लॉट इट, है ना, ऑन बोर्ड। तो अगर आपके पास 2 डिसीजन वेरिएबल्स प्रॉब्लम है तो हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। जैसे लास्ट 2 प्रॉब्लम आई हैव डिस्कस्ड, सो दे आर हैविंग ओनली 2 डिसीजन वेरिएबल्स। उस टाइप की प्रॉब्लम को मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं, बिकॉज आई कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ 2 वेरिएबल इजीली बाय कंसीडरिंग एक्स एंड वाई एक्सिस। एक वेरिएबल को एक्स एक्सिस ले लेंगे, एक को वाई, वो रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो उससे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन इजीली, है ना। तो दिस मेथड आई विल बी यूजिंग ऑलवेज whenever the problem have 2 decision variables. अगर 2 से ज्यादा आएंगे तो फिर सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे ना। तो लेट अस टेक वन प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो आई एम टेकिंग वन प्रॉब्लम नंबर आपकी ये 300। इससे प्रॉब्लम उन्होंने कंस्ट्रक्ट करी है, तो मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ क्योंकि फॉर्मुलेशन तो आप लोगों को अब आ गया है, यू नो हाउ टू फॉर्मुलेट। सो डायरेक्ट आई एम टेकिंग द प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ जिसको हमने फॉर्मुलेट कर दिया है by considering all these things. So I have a problem, maximize
सब ध्यान से देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम भी मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट, ये मैं शॉर्ट में s2 लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स आपको गिवन है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 800, x1 लेस देन इक्वल टू 400, x2 लेस देन इक्वल टू 700 एंड ये जो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये आपका इट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं फीजिबल रेस्ट्रिक्शन, है ना। ये जो होती है ये हमेशा आपके उसमें होगी, क्योंकि प्रोडक्ट या जो भी आप प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम, उसमें यू नो के जो x1 x2 ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों भाई? प्रोडक्ट कैन नॉट बी निगेटिव, जीरो हो सकता है यस सर। कि x1 बिल्कुल ना आ रहा हो, x2 बहुत आ रहा हो, तो इट इज कॉल्ड फीजिबल रेस्ट्रिक्शंस कराती हैं। तो ये हर प्रॉब्लम में आपको होंगी, मतलब प्रॉब्लम में गिवन नहीं होगी आपको, लेकिन ये आप अंडरस्टूड है कि व्हेनेवर यू आर कंसीडरिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ ट्रक्स, तो ये हमेशा हमेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। तो ये फिजिकल रेस्ट्रिक्शन है, ये हमेशा आपको लेनी ही है, ऑलवेज यू हैव टू कंसीडर इट, कीप इन माइंड, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम गिवन है, इसमें कुछ होगा x1 x2। नाउ द पॉइंट हाउ टू सॉल्व इट। तो एज आई टोल्ड यू, बिकॉज इट हैज टू डिसीजन वेरिएबल्स, तो ग्राफिकल मेथड इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ग्राफिकल मेथड के लिए x1 x2 टू वेरिएबल्स है, तो यू नो कि आई कैन कंस्ट्रक्ट द ग्राफ बाय टेकिंग x1 x2, ये हमने x1 x2 एक्सिस ले लिया, xy होता तो xy ले लेते। तो सपोज इट इज योर x1 लाइन, इट इज योर वही R2 प्लेन है आपका x1, जिसे आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं, इट इज x1 एक्सिस, इट इज x2 एक्सिस। तो आई एम प्लॉटिंग द ग्राफ नाउ। तो देखो फर्स्ट थिंग हमेशा ध्यान रखनी है कि x1 x2 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब माय एरिया विल बी ऑलवेज व्हिच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस। देखो फर्स्ट इनइक्वालिटी लिखते हैं पहले। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का रोल तो हमें सॉल्व करने में आएगा, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन है पहले हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x1 x2 की। तो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 800, तो लेस देन इक्वल टू 800 के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? एनी आइडिया हाउ टू शो? तरुण शर्मा, यस सर। बताइए हाउ टू प्लॉट x1 प्लस x2 लेस देन 800, हाउ टू प्लॉट दिस रीजन, एनी आइडिया? सर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 800 को प्लॉट करेंगे और फिर उसमें एरो लगाते हैं लेस देन के लिए। यस, सही है, करेक्ट। पहले हम x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 800 प्लॉट करेंगे। देखो तो आई कैन चेंज इट इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है? x1 अपॉन 800 प्लस x2 अपॉन 800 इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख दिया हमने। तो यू नो ये लाइन अगर आपको प्लॉट करनी होती है तो आप कैसे प्लॉट करते हैं? यू नो दिस थिंग, है ना। क्या करते हैं हम भाई कि x1 पर 800 इंटरसेप्ट, x2 पे 800। तो सपोज हमने एक लाइन ले ली इस तरीके से, सपोज ये 800 है, सपोज दिस इज 800, है ना, दिस इज इट। तो इट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। x अपॉन a प्लस वाई पढ़ा होगा आपने, ये x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b। यस सर। तो ये लाइन क्या होती थी आपकी? ये तो होती इक्वल थी टू 1। a पर, इस पर a, तो वही है। तो हम इसे बेसिकली वी विल ट्राई टू राइट इट इंटरसेप्ट फॉर्म। अब लेस देन है, तो जब लेस देन होगा तो लेस देन मींस बिलो द लाइन, टुवार्ड्स द ओरिजिन, हमेशा ध्यान रखना, है ना। ये मैं एरो लगा दे रहा हूँ। तो टुवार्ड्स द ओरिजिन का मतलब कौन सा हो गया? इसका नीचे का रीजन, इट इज कंटेनिंग द रीजन बिलो दिस। तो बिलो तो सारा है, बट बिकॉज ऑफ दिस फीजिबल रीजन इट विल हैव ओनली दिस ट्रायंगुलर पोर्शन। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो मुझे कॉमन रीजन sir. लेना है। तो अभी हमारे पास कौन सा रीजन आएगा? सिर्फ ये वाला रीजन आ गया, क्योंकि ये फीजिबल रीजन इज ऑलवेज देयर। सेकंड रेस्ट्रिक्शन इज x1 लेस देन इक्वल टू 400। तो x1 लेस देन इक्वल टू 400 यू नो, तो यू विल प्लॉट x1 इज इक्वल टू 400, है ना, कांस्टेंट लाइन। x1 400 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आ जाएगा, इट विल बी कमिंग हियर समवेयर। यस सर। तो ये सपोज हमने लाइन प्लॉट करी, x1 इज इक्वल टू 400 है। अब लेस देन का मतलब टुवार्ड्स y एक्सिस, तो ये रीजन आ गया सारा, है ना। और कॉमन ये वाला पोर्शन होगा, ये क्वाड्रेटल। So it is your x1 is equal to 400. This line is x1 plus x2 is equal to 800. You can write it. Third line is x2 less than equal to 700, है ना। तो 700 में क्या हो जाएगा? अब आपके पास ये 800 था, तो यहाँ कहीं एक लाइन x2 कांस्टेंट हो दिस टाइम, तो you will take this line somewhere, है ना।
x2 is equal to 700, your third restriction. और बिकॉज लेस देन है तो लेस देन पोर्शन कौन सा हो गया, टुवार्ड्स एक्स एक्सिस है ना नीचे. तो इसमें अगर आप देखें इन ऑल दीज 3 लाइंस द कॉमन पोर्शन इज दिस इज द कॉमन पोर्शन. ये जो शेडेड रीजन आ रहा है इसको आई कैन राइट, आई कैन नेमिंग इट ओ ए, suppose it is B, this corner point is C and this is your D. Okay, so you have got these 5 corner points. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ये लाइन है, कोई एक लाइन और रहेगी क्या कोई? अच्छा, इसमें एक कांस्टेंट और गिवन था, चलो उसको हम ले लेंगे बाद में अगर नहीं लिया मैंने. चलो हाँ सपोज इतने ही कांस्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं. तो नाउ I will have this region, जो common region आता है ना, it is called feasible region. This region is called feasible region. Feasible region means in the first quadrant satisfying all the constraints, है ना. इस region में जितने भी points आएंगे including the boundaries of course, they will be satisfying all the constraints simultaneously. So it is the feasible region. Optimum solution will be coming फ्रॉम दिस फीजिबल रीजन. इसी फीजिबल रीजन में से ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा, है ना. कीप इन माइंड. अब बताओ इसमें इस फीजिबल रीजन में कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं हम x1 x2 की. हाउ मेनी वैल्यूज आई कैन गेट हियर? इनफाइनाइटली मैनी. इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज है. अब हमें मैक्सिमाइज करना है तो मैं आई कैन नॉट चेक इनफाइनाइट वैल्यूज कि मैं यहाँ पे वैल्यू उठा के रखते चला जाऊँ. यू आर गेटिंग इनफाइनाइट वैल्यूज. तो हमारे पास एक थ्योरम है जो मैं अभी बाद में थ्योरम प्रूव करूंगा व्हेन आई विल टेक अ थ्योरम पार्ट. थ्योरम ये कहती है the optimum, theorem states the optimum value of objective function occurs, theorem प्रूव करेंगे बाद में, at one of the extreme points. ये एक थ्योरम है हमारे पास. one of the extreme points of the feasible region. कि whenever you got a feasible region, और feasible region आपका यूजुअली बाउंडेड आएगा, है ना, बाउंड्रीज होंगी. जब बाउंड्रीज होंगी तो उसके कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे. तो थ्योरम कहती है कि हमेशा ऑप्टिमम वैल्यू जो हमें मिलेगी वो किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर मिलेगी. और एक्सट्रीम पॉइंट यू कैन सी हाउ मेनी एक्सट्रीम पॉइंट्स आर देयर, 1 2 3 4 5. तो यू हैव 5 एक्सट्रीम पॉइंट्स. तो अब मुझे वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना, प्रॉब्लम आपकी इजी हो गई. अब बस आपको क्या करना है, यू हैव टू प्लॉट ऑल द एक्सट्रीम पॉइंट्स और उस पर वैल्यू निकाल लो, वैल्यू ऑफ z. तो एक्सट्रीम पॉइंट्स आपके क्या है, पहला तो पॉइंट था o, ओरिजिन 0 0, है ना. सेकंड पॉइंट a था, a पे a के कोऑर्डिनेट क्या है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ a? 400, 0 0. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ b? सेकंड पॉइंट के लिए मैंने ये देखिए b के बताइए. 0,7. नहीं b को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना. तो सॉल्व करना इजी सॉल्व कर सकते हो. 400 रख दो यहाँ पे, x2 कितना आ गया, 400 आ गया. तो इजी सॉल्व हो सकता है. तो b पॉइंट भी आपका, यू आर गेटिंग b पॉइंट इज 400, 400, है ना. यस सर. और वन मोर पॉइंट c में क्या है, x2 700. Yes, so it is c point 100, 700. और लास्ट पॉइंट d है आपका. d पॉइंट इजीली y एक्सिस पर है. तो d में पॉइंट इज हाउ मच, 700 है और 0. तो 0,7. ठीक है. ये आप जब आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए यहाँ पर आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए. तो z वाज हाउ मच, z कितना था आपका, 4x1 प्लस 3x2. 5x2. तो o पर वैल्यू कितनी आ गई z की, 0, है ना. यस सर. o पर वैल्यू आ गई 0. व्हाट अबाउट a? a पर हाउ मच इट इज कमिंग, 1600. b पे हाउ मच इट इज कमिंग, 1600 प्लस 100. हाउ मच, 2800. यस. c पे हाउ मच इट इज कमिंग, 2500. 400 और 70, 25. यस. एंड हाउ मच d, 2100. 2100. So now you can see which value is giving you the maximum value.
20 2800 ना, आप उसमें देख सकते हो 400 B easily। B हाँ, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम थी तो आई विल सी द मैक्सिमम वैल्यू, अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होती तो मैं मिनिमम वैल्यू देखता। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, इट मींस व्हाट, कि एट द पॉइंट B you will be getting the maximum value, so this implies that at x1 is equal to 400 and x2 is equal to 400, है ना, ये आपका this is the optimum solution, है ना, this is the optimum solution, we get optimum value, optimum का मतलब वही maximum, z is equal to 2800। तो अगर ये आपके पास प्रॉब्लम होती, जैसे अभी हमने बॉर्डर्स की प्रॉब्लम करी थी, तो उसमें निकल आता कि साहब 408 ounce bottles, 416 ounce bottles, या जो भी प्रॉब्लम ये रही होगी। ओके, so in this way you can solve easily कि how we can get the optimum solution with constants। constants को satisfy करेगा ही करेगा, आप देख सकते हैं सारे पॉइंट जो हैं वो, है ना, constant satisfy करता हुआ रीजन लिया हमने। तो in this way you can solve this problem, so it means कि to get the maximum profit x1 should be reduced to be 400 and x2 should be 400 also। तो ये एक आपका मेथड था। अब इसमें डिफरेंट केसेस आपके आगे हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन यू आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यूज एट टू सिमिलर पॉइंट्स। ऐसा भी हो सकता है कि आपके 2800 दो पॉइंट्स पे आ जाए, है ना, सपोज ए पे भी आ रहा होता है ना, या समटाइम इट हैज नो सॉल्यूशन, समटाइम इट हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन, या इट हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन, है ना, ग्राफ आपका प्लॉट हुआ लेकिन अनबाउंडेड आ रहा है, यू आर नॉट गेटिंग वन, अगर एक बाउंड्री भी इसमें से नहीं आई तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा, है ना। So these are the special cases which we will discuss in the next class, that means tomorrow, है ना। अच्छा, इसमें आप एक काम करिएगा, एक आध प्रॉब्लम और आप डिस्कस अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक प्रॉब्लम लिख दे रहा हूँ आपको, चाहे प्रॉब्लम नंबर इस क्वेश्चन में हमने एक इक्वेशन तो छोड़ दी है, कौन सी छोड़ दी, बताओ यार। टाइम कांस्टेंट वाली सर। कहाँ है टाइम कांस्टेंट? प्रॉब्लम तो ये है आपके प्रॉब्लम पास में खाली, सर भाई ये कांस्टेंट्स थे 1 2 3 4 कांस्टेंट्स लिए तो मैंने। ये जो फोर्थ कांस्टेंट है x1 ग्रेटर इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर इक्वल टू 0, ये तो आपका आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन कि इट शुड बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वरना तो ये रीजन आपका पूरा नीचे यहाँ तक आ जाता है कि नहीं, अगर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो। ठीक है सर। ठीक है, तो ये तो आपका फिजिबल रीजन जो आप टाइम ठीक है। कॉस्ट कहना, इट इज द फर्स्ट कांस्टेंट यू हैव टू कंसीडर कि रीजन विल बी ऑलवेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको तो सबसे पहले अज्यूम किया है हमने। ओके, yes sir, चलो अब टाइम कम है तो टुमारो आई विल डिस्कस अनदर प्रॉब्लम्स, है ना। Okay, sir. ऑल ऑफ यू Okay, sir. प्लीज प्रेजेंट देयर। चलिए भाई, Okay, sir. Thank you. ओके, Assalamu alaikum. ऑल द बेस्ट।